all. How's everyone? Doing well? Okay, guys. So, how's the studies going on? हाँ जी, रिवीजन चल रही, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सबको? Yes, guys. Okay, everyone. About system कर रहे थे last time. Yes, everyone. Any specific doubt? Anyone having? Okay. हाँ जी. Right. So we were talking about the ecosystem. Right. Ecosystem में हमने state किया था सबसे पहले कि it's being found in the structural and functional unit of the biome. Right. Now, first of all, फटाफट चल जाऊंगी and you are going. Which type of the food chain is a major conduit of energy flow in aquatic ecosystem? Which type of food chain is a major conduit of energy flow in aquatic ecosystem? कौन सा होता है हमारे पास? Okay, base pairing. हाँ, okay. हाँ जी, क्या होता है आंसर? Right, क्या लेके चलते हैं? Remember grazing food chain. Right, we will say grazing food chain is being the one major conduit of energy in terrestrial aquatic ecosystem, and detritus food chain is a major पास यहाँ पर कहते हैं major conduit of energy in the case of the terrestrial. Right, तो ये point ध्यान रखना है हमारे पास कि हम कौन सा हमारे पास particular conduit of energy flow के लिए responsibility share करता है. Now, another one, tell me what, right, during the formation of ecological pyramid, inverted ecological pyramid is found in, inverted ecological pyramid is found in किसमें और character के लिए inverted मिलता है हमें? हाँ जी, क्या होगा? Aquatic, good. Right, so aquatic बिल्कुल ठीक है. Aquatic for the case of the biomass, right? Aquatic ecosystem, very good. Right, Ankur and Vanshika, we will find it for the biomass. Pyramid of biomass हमें मिलेगा. That is going to be inverted in nature if we will talk in the aquatic ecosystem. अगर वही terrestrial में देखें तो it's going to be right in nature. में पढ़ेंगे तो हमारे पास upright आया था. बिल्कुल ठीक है. Which ecological is called realistic ecological pyramid? Which ecological pyramid is called realistic ecological pyramid? Realistic ecological pyramid हम किसे कहते हैं? हाँ जी. Right, which is called pyramid of energy. Very good, Rajul. That's we find the pyramid of energy. Right, fine. As the ecology हमारे पास pyramid है, which is being a realistic pyramid है हमारे पास. बिल्कुल ठीक. Right, done. Right, what's an interaction found in the what's an interaction found in apple and walnut? Apple and walnut. एप्पल और वॉलनट के में कौन सा टाइप का इंटरेक्शन प्रेजेंट है? वेरी गुड, अमेंसिलिज्म. राइट, वी विल से अमेंसिलिज्म is going to be found. राइट, ठीक है. अमेंसिलिज्म में फाइंड होता है इन द कंडीशन. हम कहते हैं कि हमारे पास राइट एप्पल और वॉलनट का हम केस लेके चलते हैं. राइट, ओके. टेल मी कस्क्यूटा एंड होस्ट. कस्क्यूटा एंड होस्ट कौन सा है? सिंपल है. Ectoparasitism, very good. Right, very good. Ectoparasitism and parasitism is being the one which is being found, right, in this case. ठीक है. Right, हमने कहा यहाँ it's going to show complete parasitism over there. Right, उसमें show करता है हमारे पास Pisaster fish and invertebrates. Pisaster fish and invertebrates. जल्दी से.
Pisaster fish predation, very good, that's predation, right? Pisaster fish अगर हम लेके चले invertebrate, remember उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, right? predation के टास्क के लिए हमने उसे इंट्रोड्यूस किया था, राइट? बिल्कुल ठीक है, जो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि इट्स बीइंग व्हिच इज कॉल्ड एज द प्रेडेशन, गुड, राइट? अच्छा, अब एक पॉइंट और है, एक आपका लाइन है एनसीईआरटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से रिलेटेड, और वो मुझसे क्वेश्चन पूछा था, राइट? कुछ लेट मी टेक दैट लाइन फर्स्ट, राइट? ये पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, दैट one base pair stacks over another in the double helix in addition to H bond confers stability to the helical structure, राइट? अब हमने कहा यहाँ पर प्लेन ऑफ वन बेस पेयर, एक बेस पेयर का प्लेन का मतलब क्या? अगर मैंने यहाँ पर एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रखा है और ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, तो वन बेस पेयर, लेट्स सपोज another base pair, let's suppose they are stacking over one another in such a manner, इस तरीके से स्टैक कर रहे हैं, वन फिर सेकंड फिर थर्ड फिर फोर्थ, ये इस तरीके से अपने आप को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर पूरा मेंटेन रहता है, देयर इज अ मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट? और वो स्टैकिंग और क्योंकि एक परफेक्ट आपका हेलिक्स के कर्व के अंदर उतने ही नंबर ऑफ बेसेस एकोमोडेट कर सकते हैं, राइट? जो हमने पढ़ा ना, दैट इज 0.2 बेस पेयर्स आर गोइंग टू बी एकोमोडेट विद इन द कंप्लीट हेलिक्स ऑन, राइट? तो वो हम यहाँ पर अगर लेके चलते हैं, इसको कहते हैं कि स्टैकिंग हो रही है, कि वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अनदर इन सच अ मैनर कि अपने आप को मैनेज कर सके, प्रॉपर उसकी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है वो। अभी समझ आया, राइट? तो AT जस्ट स्टैक ओवर द GC, GC जस्ट स्टैक ओवर द AT, इस तरीके से जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग ऑफ द बेस पेयर। क्लियर है बेटा? राइट, हाउ स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर इज गोइंग टू डू द वर्क, राइट? सो ये हमारे पास बेसिकली स्टेट करता है, राइट, फॉर दिस कंप्लीट टास्क व्हिच वी विल डिफाइन एज द, राइट, आपका स्टैकिंग ऑफ द बेस पेयर इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हाँ, H बॉन्डिंग जरूर देता है, राइट? कभी भी आपसे पूछा जाए तो DNA डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का बैकबोन कौन प्रोवाइड करता है, तो बैकबोन इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय, राइट, हमारे पास शुगर फॉस्फेट लिंकेजेस प्रोवाइड करते हैं बैकबोन, राइट? वहीं पर उस पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बेस पेयर स्टैकिंग, राइट, एंड अनदर वन is the hydrogen bonding are going to be responsible. Base pair stacking is done because of the hydrophobic interactions, covalent interactions, जो actually help out करते हैं ताकि हमारे पास पूरा structure कैसा रह सके, stable maintain कर सके हम उस तरीके से, right? That's being the condition we define over here. Got this point everyone now? Clear है ये task अच्छे से? Right? Okay. Any other doubt from your side, guys? और कोई point और कोई doubt? Right? कोई और question? हाँ जी, डन है? तो शैल आई स्टार्ट विद द इकोसिस्टम, खत्म करें आज इकोसिस्टम कंप्लीट करके, ताकि आपका थर्सडे वाला क्लास में बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन करके आगे आपका सिलेबस नेक्स्ट वीक खत्म करते हैं। चलो एक सेकेंड रुको। ओके वन, सो वी हैव डन विद द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम। एक्सप्लेन द साइकिल्स वंस अगेन। कौन सी साइकिल बेटा? न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद, ठीक है, राइट? ओके डियर, राइट? सो ओके, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट, हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया, राइट, कि हमारे पास इकोसिस्टम को जब हमने स्टेट किया तो हमने कहा इकोसिस्टम इज गोइंग टू हैव दी, राइट, मेन हमारे पास क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, मेन फंक्शंस जो प्रेजेंट है, हमने सबसे पहला फंक्शन पढ़ा था, दैट इज द प्रोडक्टिविटी, right? The second function that we will define is the decomposition, the third one is the energy flow, and the fourth function that we are going to start with is the nutrient cycling, right? तो अब हमने पहले प्रोडक्टिविटी जब पढ़ा तो फटाफट सब मुझे दो तीन के आंसर और देना जरा, राइट? प्रोडक्टिविटी के अंदर, राइट, once we will move above to the trophic level in upright manner, the productivity increases or decreases? If we move in the upright manner from one trophic level to another, productivity increases or decreases? जल्दी से। decreases, very good, right? decreases, बिल्कुल। अब why it is going to get decrease? क्यों decrease होगा हमारे पास, right? Why we say it decreases? What's the correct reason for behind it? Respiratory losses increases. बिल्कुल, right? We will say because respiratory losses are going to increase across the trophic level, 20, 40, 60 किया था ना, right? On that ground we will say हमारे पास वो basically decrease होता है। Okay, if 100% sunlight is available, right, and you are providing more than that, right, do the PAR radiations or do the saturation changes in the plant? क्या saturation पे कोई फर्क पड़ेगा? Let us suppose I am providing 110% solar energy, right? Extra 10% I am providing it, right? No, because it will saturate only at 2 to 10%, means 10% is the maximum sunlight at which it will get saturated, जहाँ वो saturate हो जाएगा। If detritus is going to be rich in lignin and suberin, what will be the rate of the decomposition? Less. Very good.
So we will define lesser the rate of the decomposition is observed. If we will observe it, that is slow the rate of the decomposition. Right. With respect to the energy flow, हम कैसे कहते हैं ecosystem is going to be the closed or an open system? With respect to energy flow, ecosystem is going to be a closed or an open system? Open. Very good, ma'am. Open system. Bilkul, open system, because there is being the loss of the energy at every state, because it explaining the second law of thermodynamics, which state that yes, it is going to be an open system. Right. अब इसी में हम यहाँ पर देखेंगे nutrient cycling. That's a fourth function. न्यूट्रन के हिसाब से हम कहते हैं इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज साइकिल. व्हाई वी डिफाइन इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज सिस्टम. और एक क्लोज सिस्टम क्यों है हमारे पास न्यूट्रन फ्लो के हिसाब से इकोसिस्टम? बिकॉज इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो न्यूट्रिएंट्स जब भी हम लेते हैं तो दे गेट रीबैक ऑल्सो. वो रीबैक भी करते हैं. लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दिस. राइट. अब अगर मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास न्यूट्रिएंट्स स्टोर हैं, जिस जगह पे न्यूट्रिएंट्स को आप स्टोर करते हो उसे आप कहते हो रिजर्वियर पूल. Right, you will define that place as a reservoir pool. So reservoir pool is being the one, right, where the nutrient is reserved. Nutrient को आपने reserve रखा हुआ है. Nutrient is reserved in inactive, or you can say non-ionic, or you can say inert form. इसमें आपने इसको रिजर्व करा हुआ है, which can be the एटमॉस्फेयर भी हो सकता है हमारे पास, या फिर अगर हम देखें तो इट कैन बी दी लिथोस्फेयर एज वेल. तो आप कोई भी कंडीशन लेके चल सकते हो. आप इसे एटमॉस्फेयर भी कंसिडर कर सकते हो, आप इसे लिथोस्फेयर भी कंसिडर कर सकते हो. यू विल टेक इट एज द न्यूट्रिएंट रिजर्वियर पूल, जहां पर आपने रिजर्व कर रखा है न्यूट्रिएंट को इनएक्टिव, नॉन आयनिक और इनर्ट फॉर्म के अंदर, दैट इज इन द स्टेबल फॉर्म. अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपने उसे स्टेबल फॉर्म में रखा हुआ है. अब इसी में रिजर्वियर पूल के बाद, राइट, वी विल से दैट देयर इज बीइंग द वन व्हिच इज कंसीडर्ड एज अ साइक्लिंग पूल. साइक्लिंग पूल का क्या मतलब है? साइक्लिंग पूल इज बीइंग द वन जहां पर एक इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हो रहा है. राइट, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट अमंग बायोटा. बायोटा के अमंग भी आप साइक्लिंग करा रहे हो, एंड बिटवीन एबायोटा एंड बायोटा. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर से प्लांट्स रिसीव कर रहे हैं या प्लांट से एनिमल रिसीव कर रहे हैं. तो दोनों तरफ से आप देख रहे हो, जिसके अंदर आप न्यूट्रिएंट को किस फॉर्म में रखते हो? राइट, न्यूट्रिएंट इज फाउंड एज आयोनिक, एक्टिव, राइट, और अनस्टेबल फॉर्म में रहता है. राइट, यहाँ आप इस तरीके से करते हो. तो ये हमारे पास बनता है ओवरऑल एक साइक्लिंग पूल. इस न्यूट्रिएंट रिजर्वियर पूल से साइक्लिंग पूल में न्यूट्रिएंट मूव करते हैं, राइट, व्हेन रिक्वायर्ड, जब इसकी जरूरत पड़ती है, और मूव करता है बैक, राइट, जब इसको वापस से कंपेंसेट करना पड़ता है, राइट, टू कंपेंसेट दैट. राइट, कि जब हमें कंपेंसेट करना है कि जितना आपने लिया था उतना को वापस भी करना है, तो उसके लिए आप इसे साइक्लिंग पूल से वापस किस में डालते हो? रिजर्वियर पूल में. राइट, जैसे हमारे पास रिजर्वियर पूल हुआ है जहां पर हमारे पास न्यूट्रिएंट इनएक्टिव फॉर्म में, लेकिन साइक्लिंग पूल हुआ है जहां पर हमारे न्यूट्रिएंट्स एक्टिव फॉर्म में रहेंगे, अनस्टेबल फॉर्म में रहेंगे, ताकि आप उसको इजीली मूव इन करा सको. राइट, तो अगर हम देखें इस हिसाब से हमें ये पता चला कि वी आर गोइंग टू हैव द सिस्टम. हमारे पास जो पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है वो किस तरीके से मेंटेन्ड है? इट इज मेंटेन्ड एज अ क्लोज्ड सिस्टम. राइट, दैट्स व्हाई इट इज एज द बायो जियोकेमिकल, इसलिए हम इसे नाम देते हैं बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग. राइट, अब क्यों हमने इसे नाम दिया बेटा? राइट, बिकॉज़ इट इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ द न्यूट्रिएंट्स अमंग बायोटा. बायोटा के अमंग फ्लो होना न्यूट्रिएंट्स का, राइट, रिजर्व इन एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर, किसी एक में रिजर्व्ड रहेंगे, एंड केमिकल मींस आयोनिक और नॉन आयोनिक फॉर्म में हमारे पास मूव करेंगे. राइट, तो इस तरीके से हमने इसे डिफाइन कर दिया एज अ बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग, वेयर वी विल डिफाइन दैट इट अकॉर्डिंगली इकोसिस्टम इज बीइंग अ closed system. Right, is a system with respect to nutrient cycling. Nutrient cycling के हिसाब से हमारे पास इकोसिस्टम किस में रहेगा? एक पूरे के पूरे क्लोज सिस्टम में रहेगा. Got this point? Everyone clear with this? Yes, Manshika, screen is being shared, beta. Everyone able to see the share screen?
Yes, ma'am. Good. Right, Marshika, rejoin once again. हाँ जी. It's not visible to me. Okay, just rejoin once again. And it will be fine. Right. यहाँ तक नोट हो गया. अब हमने कहा based on the reservoir pool. Reservoir pool कौन सा है हमारे पास? So we will say based on nutrient cycling can be studied as उसको कर सकते हैं where the first is called as the gaseous nutrient cycle and the second is called as the sedimentary nutrient cycle. तो दो रख दिए यहाँ पर. One is a gaseous nutrient cycle and another is the second sedimentary nutrient cycle. Gaseous का मतलब क्या हो गया बेटा हमारे पास? the atmosphere. Right, atmosphere reservoir pool हमारे पास. Right, where nutrient is found in stable gaseous form. Right, sedimentary nutrient cycles. Reservoir pool is lithosphere. Right, जहां पर where nutrient is found in, अब sedimentary है तो means sediment है वहां पर. Right, और अगर वहां हमारे पास sediment हमने देखा उसको right, so we will say stable और inert form. Right, अब gaseous आगे चलें तो इसमें example if I will take carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen cycle, इनको place कर सकते हैं. But if I will say over here phosphorus and sulfur cycle, उसमें से अब ये ध्यान रखना है जो हमारे पास सल्फर साइकिल है, it's not the one which is only found, right, only found as sedimentary nutrient cycle. It can also be visualized as the gaseous nutrient cycle. How? क्योंकि अगर मैं फास्फोरस की बात करूं बेटा, राइट, तो फास्फोरस हमारे पास वो है जिसमें हमने ये डिफाइन किया, राइट, कि हमारे पास सल्फर की बात करूं तो सल्फर इज बीइंग द वन, राइट, जो में SO2 माइनस की फॉर्म में इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से होना उसे नेचुरली सॉइल में चाहिए बट इंडस्ट्रियल की वजह से है ना वहां पर, राइट, उस बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं, राइट. तो सल्फर साइकिल कैन बी लिस्टेड एज सेडिमेंट्री. इसको हम सेडिमेंट्री की तरह कब लिस्ट करेंगे, राइट, जब हमें कहाँ मिलेगा, फाउंड इन रॉक्स में डिपॉजिट्स की फॉर्म में मिलेगा, बट कैन ऑल्सो बी लिस्टेड एज can also be listed as gaseous nutrient cycle. Due to industrial emission.
क्योंकि एटमॉस्फेयर में भी इसके हमें रिजर्व्स मिलेंगे। लेकिन क्या कभी फास्फोरस का कोई रिलीज एटमॉस्फेयर में देखा है एज अ गैसियस फॉर्म? नेवर ना, राइट। तो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल सेडिमेंट्री का कौन सा होगा? फास्फोरस, राइट। सो वी विल से फास्फोरस साइकिल best example of sedimentary nutrient cycle as सबसे पहली चीज there is no sedimentary cycle, or we can say कंप्लीट रहेगा, ये पॉइंट अच्छे से याद रहेगा। नोटेड है, यहाँ तक का आगे बढ़ जाओ। यस एवरीवन, गुड, राइट। तो अब हम इसी में अब हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली पहले नाइट्रोजन साइकिल बनाएंगे, फिर कार्बन साइकिल, फिर फास्फोरस साइकिल। छोटी छोटी सी साइकिल है। नाइट्रोजन तो अगर याद हो थोड़ा तो पहले ही बनाई है 11th में। Now, in this, we will say, beta, we have the reservoir and that reservoir pool is atmosphere, correct? Where N2 is, nitrogen is present as N2 as a stable inert form of nitrogen. अब ये जो हमने रिजर्वियर पूल यहाँ लिया है, इसमें N2 है हमारे पास। इससे मुझे N2 लेके so we have साइक्लिंग पूल। अब पॉइंट यही देखना है बेटा कि इसको साइक्लिंग पूल में हम कैसे लेके आएंगे। Very first method, I hope everyone remember industrial nitrogen fixation. Right, biological nitrogen fixation. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद H4+ भी बना along with NO3-, वहीं पर so we will say detritus is being there
Detritus क्या होगा बेटा हमारे पास यहाँ? Detritus follow the process of the Ammonification. very good ammonification. हम किसको NH4 plus. Then NH4 plus follow the process of the Nitrification. very good. In this we will have the development of change NO3 minus. अब प्लांट सबसे ज्यादा किसको अब्सॉर्ब करता है? NH4 plus और NO3 minus. NO3 minus. NO3 minus को यूज किया कंप्लीट फूड वेब राइट. उसी के साथ इस पूरे अगर साइकिल के पाथवे में देखते हैं इन दिस कंप्लीट, अगर ये पूरा हम इसमें प्रोसेस देखें तो व्हेन वी विल से जब आपका यहाँ पर ये पूरा मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा, सो वन टास्क यहाँ से हमारे पास which is being called as the will changes into sorry एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कोई एब्डोमिनस का एक सेकेंड, that's a process called nitrogen cycle. हाँ जी साइक्लिक अच्छा कार्बन साइकिल का रिजर्वियर पूल बताओ. रिजर्वियर पूल किस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे पास? नाउ अब हम इसमें क्या साइक्लिंग प्लांट्स right, so थोड़ा पेन photosynthesis. Similarly,
Then we will say, if we talk about the phytoplanktons. अच्छा, example of phytoplanktons, anyone? एक second. Right. So this is right. अगर plant or phytoplankton when go for the process of will it reduce back? Yes, everyone got this point. Now, the next one. Now, within the cycling body, we'll say happen. Yes, guys. Burning of the fossil fuel. And combustion activity also increases. CO2 का escape environment में बढ़ा. Correct. CO2 increase. क्या इसकी वजह से जमीन में डाल रहे हो? में CO2 होगा ना, बट जहां हमने CO2 का लेवल वेपोल में ज्यादा हो जाएगा, कैन आई से इंक्रीज इफेक्ट? एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का एकदम एक्सेस कंसंट्रेशन होना. Leads to increased greenhouse effect. इसकी वजह से हम क्या कहेंगे यहाँ पर? Increased global warming. Along with that, क्लियर है? दोनों गैसियस साइकिल क्लियर हो गई. आगे बढ़ जाऊं. नेक्स्ट वन, that is the like यहाँ तक ठीक. Should I start? राइट. फॉस्फोरस साइकिल बहुत ध्यान से समझना. सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल किस तरीके से स्टेट करते हैं. नाउ वी सो हियर, हमने कहा बच्चे हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है? राइट. फॉस्फोरस, तो इट इज प्रेजेंट इन द रॉक. बेडरॉक. बेडरॉक का जो नीचे का प्रोसेस है,
weathering, right? Weathering करने के बाद the soil which is rich in the now this soil has been uptaken by plants mycorrhizal association. Plants will be taken up by animals. Right? When we will say plant and animal both, when become detritus. And let us go for the task of the Composition. decomposition. कंप्लीट हुआ यहाँ तक का पॉइंट. तो ये ऊपर वाला कौन सा हो गया? Now we will say in this condition हमने कहा ये साइक्लिंग पूल हो गया हमारे पास, ये रिजर्व कर रहा है. Completed with the phosphorus cycle. All the cycles. Ma'am, Ma'am. ma'am, some words are not visible. Okay, everyone, is it visible to everyone? Ma'am, पेन, हाँ ये पेन थोड़ा हो रहा है बट तभी वो बीच बीच में ना वर्ड गायब हो रहे हैं. मेरी स्क्रीन से भी तभी बार बार पूरा वर्ड आपके पास आ जाए. राइट, तो जो नहीं है वो मुझे बता दो एक बार. मैं वरना आपके साथ तो पीडीएफ दूसरा वाला शेयर करूंगी इसमें प्रॉपर. ma'am, above decomposition, what is written? राइट, Yes, ma'am. गुड. तो ये ना इस वाले से एक बार दिखा देती हूँ, एक बार रिकैप कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा. क्योंकि ये पेन में ही प्रॉब्लम आ रही है. इसका वो ने डाला है नया पेन, देखिए कब तक आता है. बस आ जाएगा, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी आपकी. क्यों हो गया था? Okay, now it's being fine. See, parent rock is weathering is for soil is the phosphorus. Soil से हमने basically दिया plants में. Plants will uptake through cell association. Plants will go for the G and go for the animals. Animals में गया, animals का death decay होके detritus बना, parents का decay होके detritus बना, decomposition से वापस से हमारे पास complete आ गया. अभी clear हुआ process? क्या? Right, this is the phosphorus cycle. Right? अभी मैं अगर रीड करके पढ़ाऊंगी तो आपको नहीं क्लियर होता है ना, तभी मैं फिर लिख रही थी. राइट, अच्छा अब अगर मैं फॉस्फोरस साइकिल कहूँ बेटा तो इनमें से फास्ट कौन है? राइट, if I will take gaseous cycle are being faster or sedimentary cycle are being faster? Gaseous cycle, sedimentary के comparatively, correct? Right, so if we will say sedimentary के comparatively gaseous are going to be faster. So on that account if we will observe, right, तो हम यहाँ पर लेके चलेंगे बस gaseous sedimentary cycle और अच्छे राइट फास्टली हो सकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप इसका एक्सचेंज लिथोस्फेयर से कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको एक्सचेंज प्रॉपर इसमें नहीं मिलेगा. राइट, सो दैट्स बीइंग द फैक्ट व्हिच इज बीइंग ऑब्जर्व. क्योंकि फास्फोरस का कोई भी रेस्पिरेटरी अपटेक है नहीं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन राइट उसका इतनी फास्टर स्पीड आपको उसकी नहीं मिलेगी. राइट, तो लेट्स सी सही चल जाए तो. ओके गाइस, सो कंप्लीट यहाँ तक का पॉइंट डिफरेंट साइकिल एवरीवन डन. आगे बढ़ जाऊं. The important process that we are going to start today and complete it. Right, that is ecological succession. चलो आज जुगाड़ लगाया मैंने, क्या पेपर लगा दिए, देखते हैं.
शीट पतला वाला कैसे चलता है? ओके गाइस, नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चाहते हैं? राइट, उसी के साथ साथ आपका रेस्ट ऑफ द पार्ट वी हैव डन प्रीवियस। सक्सेशन वाला पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। आपको याद है जब मैं पॉपुलेशन पढ़ा रही थी तब भी मैंने सक्सेशन का वर्ड यूज किया था, आई यूज द वर्ड सक्सेशन, राइट। वहाँ एक प्रोसेस भी आपको समझाया था, तो जिसमें डाउट भी था आप लोगों की, मैम कैसे आपने कर दिया कि पहले एक्सपोनेंशियल कर दिया फिर लॉजिस्टिक कर दिया, राइट। तो वो वाला अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। क्या इसको देखेंगे तो सक्सेशन का मतलब है सक्सीड करना, एक के बाद एक आना, राइट, वन आफ्टर अनदर। तो हमने कहा यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बाद हमारे पास सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो उसको हमें देखना, दैट इज द ग्रेजुअल and fairly predictable changes in species composition. species की composition में कुछ gradual changes होना, fairly predictable changes होना, right, species की composition में over an area is defined as succession. आपने कहा एक एरिया पे आप बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली, राइट, और फेयरली प्रेडिक्टेबल थोड़ा बहुत पहले आपको पता ही है, उस हिसाब से आप स्पीशीज की कॉम्पोजिशन चेंज ला रहे हो, देन इट इज कॉल्ड एज सक्सेशन, राइट। प्रोसेस ध्यान से क्लियर करना। लेट्स सपोज बेटा आई हैव टेकन एन एरिया, राइट, मैंने एक एरिया व्हिच इज बीइंग द bare area. Bare area means where never vegetation was observed before. जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं दिखती, तो उस एरिया को मैंने नाम क्या दे दिया, bare area, फाइन। लेकिन मैं इसकी जगह एक आई कैन टेक अ डिवास्टेड एरिया। डिवास्टेड एरिया का क्या मीनिंग हो जाएगा, वेयर वेजिटेशन हैज बीन डिस्ट्रॉयड, जहाँ वेजिटेशन डिस्ट्रॉय कर दी गई, राइट, वो डिवास्टेड एरिया हो गया। तो आपके पास इनमें से कोई भी अगर एक एरिया प्रेजेंट, अब इस एरिया पे आप सबसे पहले एक कम्युनिटी को एस्टैब्लिश करते हो, you allow the establishment of the first community over here, और जो सबसे पहली कम्युनिटी एस्टैब्लिश होगी यहाँ पर उसे आपने नाम दिया as pioneer community. तो pioneer community is being the one first established एरिया। अब इस पाइनियर कम्युनिटी के बाद बहुत सारी बीच बीच में कम्युनिटीज आई, which is called transitional community or called serial stages. बहुत सारी कम्युनिटीज बीच बीच में डेवलप हुई हैं, and finally we have the development of climax community. Now the climax community which is going to be there is the most stable community large populated, population बहुत ज़्यादा है, right, और ज़्यादा stable है। उसी के साथ साथ in near equilibrium with environment के साथ equilibrium में present है, right, वो हमारे पास class community, right। Suppose मैंने कहा एक सोलह से एग्जांपल देती हूँ, एक बेयर एरिया पे वेजिटेशन सबसे पहले लाइकेन की डेवलपमेंट कराते हैं, तो लाइकेन कौन सी कम्युनिटी, यस, व्हिच कम्युनिटी इज सेड टू बी कम्युनिटी, लाइकेन को मैं क्या, पानी पानी, बिल्कुल ठीक।
सबसे पहले तो उसके बाद बहुत सारी कम्युनिटीज होती रही इसलिए मुझे फॉरेस्ट भी किया। तो फॉरेस्ट उस जगह पे आया वो क्या कहलाया जाएगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एग्जैक्टली ट्रांजिट। राइट, बिल्कुल। तो हमने एक क्लाइमेट आ गया ना हमारे पास फॉरेस्ट, राइट। दिस प्रोसेस इज इसी प्रोसेस को हम नाम क्या दे दिया? नोट ओके। ऊपर यस मैम। ठीक है। जी मैम। चलो अब इसी के बाद हमने कहा बेटा, ये जो हमने पूरा सक्सेशन का प्रोसेस अभी यहाँ थोड़ा बहुत ओवरव्यूज का समझा, राइट। तो वी विल से ये सक्सेशन के प्रोसेस में हम ये कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन दी on the area that is habitat के basis पे succession can be categorized as एरिया के बेसिस पे, उसके हैबिटेट के बेसिस पे, राइट। वहां हम उसे डिफाइन करते हैं इन द टू कैटेगरी, primary succession and another one is the secondary succession। क्या मीनिंग होगा इसका? कुछ नाम से पता चल रहा है? प्राइमरी मीन्स फर्स्ट टाइम ना, when succession occur on the bare area, जब सक्सेशन आप बिल्कुल एक बेयर एरिया पे कराते हो, एक कंप्लीटली न्यू एरिया पे, राइट, उसे आप क्या डिफाइन करते हो? प्राइमरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन किसे कहते हो? राइट, when succession occur in the Devastated area. devastated area, उसे आप डिफाइन क्या करोगे? सेकेंडरी सक्सेशन, राइट। तो अब अगर मैं इसके हिसाब से आपसे पूछूं, राइट, तो डिवास्टेड एरिया जो है हमारे पास, दैट इज इट बेसिकली डिपेंड ऑन द एरिया एंड द फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स लेके चल रहे हो उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन करते हो, राइट। तो अगर मैं आपसे कहूँ बेटा यहाँ पर द कंप्लीट प्राइमरी ग्रोथ, राइट, प्राइमरी सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, तो प्राइमरी सक्सेशन हमारे पास बेयर एरिया पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली डू वी हैव टू इन्वॉल्व द वेदरिंग प्रोसेस? करना पड़ेगा ना प्राइमरी सक्सेशन के लिए, क्योंकि वहां पर तो कुछ भी नहीं है ना, एकदम बेयर लैंड है, राइट। तो वी हैव टू गो फॉर इट, राइट। मींस हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बेयर प्राइमरी सक्सेशन के लिए? नीड टू गो फॉर द वेदरिंग प्रोसेस। और यहाँ पर नो नीड ऑफ वेदरिंग, इसकी वजह से वेदरिंग और soil formation, राइट। तो हमने कहा एज ऑलरेडी, वापस से फिर इसका उतर गया ना सिस्टम, मैं दोबारा लिखती हूँ क्लियर हो जाएगा आपको। एज ऑलरेडी present, right? So who is going to be the slower and the faster process? मैम प्राइमरी सक्सेशन
succession is slower one. वेरी गुड, Primary succession. बिल्कुल। तो हमने कह दिया स्लो प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। It's being the one which is the faster process of the succession. अच्छा, दोनों में से सबसे ज्यादा हमें प्राइमरी मतलब पायनियर कम्युनिटी की डेवलपमेंट किसमें इजी रहेगी और किसमें डिफिकल्ट रहेगी? पायनियर कम्युनिटी की डेवलपमेंट सेकेंडरी में डिफिकल्ट होगा। सेकेंडरी में डिफिकल्ट रहेगी। क्यों? Why? हम कंपटीशन बहुत होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ तो भी है ही नहीं। डिवास्टेड का मतलब तो आपने कोई भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म दे नहीं रखा है। सक्सेशन तो आप स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पर कोई भी नहीं है। से प्राइमरी में प्राइमरी में डिफिकल्ट होगा क्योंकि सेकेंडरी में कुछ तो सॉइल होगी ना पहले से, उसमें हमें सॉइल भी बनानी है। बिल्कुल। तो अब अगर हमने प्राइमरी सक्सेशन कहा तो वी विल से डेवलपमेंट एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिफिकल्ट, और यहाँ पर establishment of clear with this? Right. अच्छा, land disturbed by forest fire will follow primary succession or secondary succession? Please repeat, ma'am. Plants area devastated by forest fire. Secondary. Secondary succession. Sand dunes. Primary. क्योंकि सबसे पहली है ना जगह सॉइल कैरी करने वाला, राइट? तो प्राइमरी सक्सेशन। वॉल्केनिक इरप्शन लैंड सेकेंडरी। बिल्कुल सेकेंडरी। वॉल्केनिक इरप्शन वाले में थोड़े बहुत बैक्टीरिया मिल जाएंगे जो उस टेम्परेचर पे रह रहे होंगे। डिटेल यहाँ तक समझ आ गया है सबको अच्छे से? आगे बढ़ूं? नाउ depending on the mode of succession, it can be studied as, जिसमें आप मोड ऑफ सक्सेशन के साथ हैबिटेट भी ले सकते हो, जो आप जगह लेके चल रहे हो। We say two category, Zirac succession हाइड्रैक सक्सेशन। जल्दी से मीनिंग बता दो जरा, नाम पढ़ के। Zirac dry, Hydrac water. Very good. Zirac is going for the dry, Hydrac is going for the water, which we will observe. हमने कहा Zirac succession is being the one जहाँ हमने कहा occur on xerophytic habitat, जहाँ पर आप क्या कराना चाहते हो, you will have xeric zone को आप किस जोन में कन्वर्ट कराओगे? Mesic zone, right? That is xerophytes will be converted to Mesophytes. mesophytes as forest, which we will define. फिर हमने कहा हाइड्रैक सक्सेशन जो होगा हमारे पास, अकर इन एक्वाटिक हैबिटेट में अकर करेगा, जहां पर आप
मैजिक जोन। हाइड्रोफाइट्स टू मेसोफाइट्स, राइट। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ ये देखती हूँ कि ज़ेरोफाइट से मेसोफाइट पे हम जाते हैं, इन बिटवीन जितने भी स्पीशीज हैं दे आर कॉल्ड ज़ीरोसीर। इनके बीच में जितने भी स्पीशीज हैं हाइड्रोसीर। क्या होगा ये सीर? क्या होगा हमारे पास? सीर अगर मैं वर्ड यूज करूं तो सी डिफाइन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ये इवेंट्स का सीक्वेंस है इन बिटवीन पायनियर कम्युनिटी एंड लास्ट में कौन सा आएगा हमारे पास? क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स कम्युनिटी। दिस इज पॉइंट क्लियर, राइट? तो मीन्स अगर मैंने यहाँ पर कहा ना आई एम हैविंग पायनियर कम्युनिटी, सबसे पहले डेवलप हुई, then I'm having the climax community. This is in between called as a seed or transitions. Fine, which include the serial stages. इसके अंदर कौन आएगा हमारे पास? serial stages ना। अब मीनिंग क्लियर हो गया है सबको अच्छे से? यस गाइस, डन है, आगे बढ़ जाओ। राइट, तो मूविंग टू दिस, अब आगे आते हैं इसके अंदर कि when we talk about the number first process for succession, फिर एक एक करके इज़राक और हाइड्राक पे जाऊंगी। प्रोसेस ऑफ सक्सेशन स्टेप्स, क्या क्या स्टेप्स होंगे, राइट? ओके गाइस, नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना। इमेजिन अ बेयर एरिया, एक बेयर एरिया को इमेजिन करना है। मींस मैं कौन सा सक्सेशन की बात कर रही हूँ? इराक। Zirak. प्राइमरी। बेयर एरिया मींस प्राइमरी ना, सिंपल, राइट? अब ज़राक हाइड्राक पे तो आ जाएंगे, राइट? तो अब हमने कहा यहाँ पर हमने वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइमरी सक्सेशन ओवर हियर, हम एक बेयर एरिया की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा पहला स्टेप आता है विच इज कॉल्ड न्यूडेशन। न्यूडेशन मीन्स फाइंडिंग और एक्सपोजर ऑफ अ बेयर एरिया। एक बेयर एरिया फाइंड हुआ जिसपे सक्सेशन होने वाला है, उसका एक्सपोजर हुआ, मीन्स अब आगे इसका इस पे हम यहाँ पर सक्सेशन कराने वाले हैं। तो विल गो फॉर द न्यूडेशन, दैट इज न्यूड लैंड को, बेयर लैंड को ढूंढना, ठीक है? अब जब आपने न्यूडेशन कराया तो उसके बाद आपने इस जगह पे माइग्रेशन करा दिया। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि लाइकेन इज अ पायनियर कम्युनिटी। अगर मान लो कोई बेयर रॉक्स प्रेजेंट है उस जगह पे, उन बेयर रॉक्स की प्रेजेंस के ऊपर क्या एकदम से लाइकेन आके ग्रो कर जाएगा? या पहले लाइकेन के स्पोर्स आए होंगे, सोरीडियम एंड इसीडियम, याद है सोरीडिया एंड इसीडियम, राइट? लाइकेन के सबसे पहले स्पोर्स या प्रोपेग्यूल्स आए होंगे, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के आए होंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ ग्रो कौन कर पाया होगा? लाइकेन। ओनली लाइकेन वाज बीइंग एबल टू ग्रो ओवर देयर, राइट? तो अगर उसके बेसिस पे हम देखते हैं
तो वी कैन सिंपली से दैट क्या माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब यहाँ पर कौन कौन आएगा हमारे पास, राइट, डिफरेंट नंबर्स, राइट, वी हैव द डिफरेंट नंबर ऑफ द, राइट, हमारे पास कौन, स्पोर्स, प्रोपेग्यूल्स, राइट, ये सब के सब यहाँ पर लैंड करेंगे, माइग्रेट करेंगे, तो इनका इन्वेजन होगा, राइट, सो दे आर बीइंग इन्वेडिंग अप द न्यू एरिया, राइट, तो हमने कहा इन्वेजन ऑफ, किसका इन्वेजन करा दिया, स्पोर्स का, प्रोपेग्यूल्स का और सीड का एट बेयर लैंड, इनका इन्वेजन हो गया, राइट, क्या ये इन्वेजन मल्टीपल स्पीशीज का होगा, ऑफ मल्टीपल डिफरेंट स्पीशीज, क्या ये सब के सब माइग्रेट करने के बाद बेटा वहां सक्सेसफुली जर्मिनेट कर जाएंगे या ओनली फ्यू विल एबल टू जर्मिनेट, क्या होगा, all has a potential to germinate at that place or only few will be able to germinate, हाँ जी, few will be able to germinate ना, सभी तो germinate नहीं कर पाएंगे, right, तो अब पहले क्या शुरू होगा, germination, germination means development of an organism, development and growth of organism डिपेंडिंग ऑन, राइट, किस पे डिपेंड करते हुए, हमारे पास फेवरेबल कंडीशंस, क्या क्या फेवरेबल कंडीशंस हैं उन पे डिपेंड करते हुए कैसे ऑर्गेनिज्म वहाँ डेवलप और ग्रो कर रहा है, राइट, उस पूरे प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया, जर्मिनेशन, राइट, तो अब लेट अस सपोज, अब बहुत ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक लैंड है, इस लैंड के ऊपर A, B, C, D, ये 4 आए हमारे पास स्पोर, इसमें से सिर्फ C जर्मिनेट कर पाए, ये सब के सब जर्मिनेट नहीं कर पाए, अपनी पॉपुलेशन आगे मूव नहीं कर पाए, तो पहले जर्मिनेट करने की कोशिश की तो की लेकिन जर्मिनेट नहीं कर पाए, तो सक्सेसफुल जर्मिनेशन के प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, एक्सेसिस, राइट, एक्सेसिस का मतलब, राइट, इट्स बीइंग द वन सक्सेसफुल जर्मिनेशन of one type of species, अगर एक ही टाइप के स्पीशीज का कराया तो क्या पहली वाली कम्युनिटी को आई कुड नेम एज अ पाइनियर कम्युनिटी, यस एवरीवन, सक्सेसफुल जर्मिनेशन हो गया, तो जिसका सक्सेसफुल जर्मिनेशन हो गया उसे हमने क्या कह दिया यहाँ पर, कंप्लीट एज अ पाइनियर कम्युनिटी, ये पॉइंट समझ आ गया, हाँ जी बच्चा, what is written after germination in the box, अच्छा, इन द बॉक्स एक्सेसिस, रुको मैं दोबारा से लिख देती हूँ, ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, एस इज साइलेंट इन दिस, ठीक है, समझ आया पॉइंट, नाउ अब हमने कहा ये एक्सेसिस करने के बाद क्या अब एक कम्युनिटी अगर वहां सेट हो गई है तो क्या वो अपने नंबर को बढ़ाएगा, अगर वो अपने नंबर को बढ़ाएगा तो इट विल गो फॉर कॉलोनाइजेशन एंड एग्रीगरेशन, फाइन, अपने आप को एग्रीग्रेट करेंगे, राइट, उसी के साथ साथ हमने कहा यहाँ पर, राइट, दे विल गो फॉर अ टास्क विच इज कॉल्ड कॉलोनाइजेशन, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ सक्सेसफुल स्पीशीज, एक सक्सेसफुल स्पीशीज की पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ, राइट, उसकी पॉपुलेशन बढ़ी हमारे पास, राइट, तो हमने कहा इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ सक्सेसफुल स्पीशीज, स्पीशीज की पॉपुलेशन हमने इंक्रीज कर दी ड्यू टू हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हैं, और उसके साथ साथ रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी उनका अच्छा है,
नाउ एक ही जगह पे अगर मेंबर बढ़ रहे हैं, क्या उसकी वजह से राइट अब क्या यहाँ पर स्टार्ट होगा कंपटीशन उनके बीच में? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. कंपटीशन एंड कोएक्शन, या तो compete करके कोई एक एलिमिनेट हो जाएगा, या याद है हमने पढ़ा था कंपटीशन एक्सक्लूजन एंड कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस, यस मैम। रिमेंबर दैट पॉइंट? राइट, तो अब मैंने कहा यहाँ पर कंपटीशन एंड कोएक्शन का मतलब species begin intra और इंटरस्पीशीज कंपटीशन, उन्होंने शुरू कर दिया इसको, और जैसे उन्होंने स्टार्ट किया इंट्रा या इंटरस्पीशीज कंपटीशन को स्पीशीज ने, राइट, तो बिकॉज ऑफ दैट इंट्रा और इंटरस्पीशीज कंपटीशन इट विल गो फॉर द टास्क leading to survival of fittest. कंप्लीट है यहाँ तक का टास्क? राइट अच्छा, अब अगर मैंने कहा यहाँ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो गया, मान लो सबसे बेस्ट स्पीशी यहाँ एग्जिस्ट कर गई, तो क्या अब मेरे पास वापस से राइट जो नए टाइप के दूसरे टाइप के प्लांट्स होंगे वो भी आके वहां पर सरवाइव करने लग जाएंगे, इन्वेड कर जाएंगे उस लैंड को, राइट? सो देयर इज गोइंग टू बी द इन्वेजन, दैट इज राइट, तो ऑन दैट टास्क हमने कहा यहाँ पर एंट्री हो गई नई स्पीशीज की उस एरिया में, राइट, एंड वंस द एंट्री विल हैपन, इन्वेड हो गया, तो देयर इज गोइंग टू बी द रिएक्शन। अब अगर मान लो बहुत सारी ट्रांजिशनल कम्युनिटीज भी आ गई उस एरिया में और क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमें बनानी है, राइट, तो इज देयर गोइंग टू बी दी population interactions over an area, राइट? और अगर आपने पॉपुलेशन इंटरेक्शंस कर दी उस एरिया पे, तो दैट कैन बी प्लस 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 और माइनस, देन माइनस और जीरो, प्लस और जीरो, और माइनस एंड माइनस। कैन एनीवन टेल मी दीज इंटरेक्शंस? फटाफट से नाम बताएगा। यस गाइस, कौन कौन सी लिखी है प्लस प्लसेस? जल्दी से। Mutualism. म्यूचुअलिज्म, बिल्कुल, Mutualism. म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन, राइट? नाउ प्लस माइनस पैरेटिज्म and predation. Next, minus zero, minus zero, amensalism. Commensalism. Plus zero, Commensalism. very good. And minus minus, Parasitism. competition. पैरासिटिज्म में तो एक को फायदा है ना, राइट? माइनस माइनस इज राइट कंपटीशन। हमने कहा इन्वेजन किया, रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन होने के बाद जब उनके बीच पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बाद फाइनली क्या हो गया हमारे पास? एस्टैब्लिशमेंट। और एस्टैब्लिशमेंट किसका हो गया? मोस्ट स्टेबल सक्सेसफुल स्पीशी community with survival of fittest point called
क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फाइन, एवरीवन, प्रोसेस क्लियर हुआ अच्छे से? राइट, तो जल्दी से एक बार स्टेप बताओ मुझे, फर्स्ट स्टेप कौन सा था? क्विकली रिवाइज करते हैं, चलो। Nudation. Nudation. वेरी गुड। राइट, सो द फर्स्ट वन इज न्यूडेशन। राइट, फिर सेकंड, उसके बाद न्यूडेशन, न्यूड एरिया फाइंड करने के बाद हमने क्या किया, उस पर किसकी डेवलपमेंट करा दी? यहाँ पर पहले माइग्रेशन कराया। राइट, सेकंड स्टेप हमारे पास क्या हो गया? माइग्रेशन। राइट, वी लेट द स्पीशीज माइग्रेट ओवर देयर। माइग्रेशन करने के बाद Germination. Germination. जर्मिनेशन। फिर सक्सेसफुल जर्मिनेशन को हम नाम क्या देते हैं? वी डिफाइन सक्सेसफुल जर्मिनेशन एज एक्सेसिस। राइट, तो एक्सेसिस का नाम दे दिया। राइट, हमने कहा यहाँ पर सक्सेसफुल जर्मिनेशन इज गोइंग टू बी देयर। राइट, फिर उसके बाद हमने कहा सक्सेसफुल जर्मिनेशन के बाद राइट वी विल से अनदर व्हिच इज बीइंग गोइंग टू बी देयर इज कॉलोनाइजेशन एंड एग्रीग्रेशन। राइट, कॉलोनी और एग्रीग्रेशन बनाया, एग्रीग्रेट किया उनको। राइट, फिर कंपटीशन और कोएक्शन, फिर इन्वेजन, एंड फाइनली हमारे पास क्या हो गया? रिएक्शन एंड एस्टैब्लिशमेंट। कंप्लीटेड यहाँ तक का टास्क। Right, so this is where we stated about the whole, हमने यहाँ define किया। Completed. Now this is where we end up with the process of the succession. अब start करेंगे आपका पहला type, that is the Zirac succession. फिर आएंगे next type पे, that is the Hydrax succession. So let's start with the first one. Zirac succession. Zirac succession कहाँ पर होगा हमारे पास? In the dry habitat. प्रोसेस ध्यान से देखना, कौन कौन से हम बनाने वाले हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पर प्लेस करेंगे। राइट, सो दैट ये कंप्लीट टास्क खत्म हो जाए। नाउ Zirac succession, ड्राई एरिया, ड्राई हैबिटेट। वी हैव टेकन अ बेयर एरिया। अब बेयर एरिया हमने लिया, बेयर एरिया पे सबसे पहले हमने जो ग्रो कराया, द फर्स्ट टाइम दैट वी ग्रो ओवर देयर, सबसे पहले हमने डेवलपमेंट करी है। राइट, वो डेवलपमेंट हमने बेसिकली करी है फॉर द ऑर्गेनिज्म लाइकेन। लाइकेन हमारे पास क्या है वहां पर? फर्स्ट कम्युनिटी को नाम क्या दिया था बेटा हमने? पायनियर कम्युनिटी। पायनियर कम्युनिटी। तो हमने कहा लाइकेन इज बीइंग द पायनियर कम्युनिटी। राइट, लाइकेन इज बीइंग द वन जिसमें हमने डिफाइन किया, सबसे पहला टाइप आया क्रस्टोज लाइकेन। अगर ये टाइप याद हो तो हमने टाइप्स पढ़े थे, क्रस्टोज, फ्रूटिकोज, फोलियोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन। राइट, और क्रस्टोज लाइकेन क्या करता है? इट मेक अ crust appearance over rock surface. जो rock present है उसके ऊपर crust appearance करता है, then release organic acids, organic acids को release करता है, which create crevices in rocks, ताकि रॉक्स में क्या क्रिएट हो सके? क्रेविसेस हो सके। राइट, तो सबसे पहले हमने किसको अरेंज करा दिया बेटा? यहाँ पर क्रस्टोज लाइकेन। अब क्रस्टोज लाइकेन हमारे पास विल अडॉप्ट एंड सर्वाइव एज फोलियोज लाइकेन। राइट, जो फोलियोज लाइकेन आया हमारे पास, सबसे पहले हम आए थे क्रस्टोज लाइकेन पे, फिर आए हमारे फोलियोज लाइकेन पे। फोलियोज लाइकेन इज बीइंग द वन जहां पर हम कहते हैं पेनिट्रेट इनसाइड द रॉक क्रेविसेस थ्रू
their rhizines and then release organic acid. फिर ऑर्गेनिक एसिड को रिलीज करते हैं टू ब्रेक रॉक स्मॉल पार्टिकल्स, राइट। तो देखो हमने क्या कहा बच्चे इसके अंदर, मैंने कहा सबसे पहला जो लाइकेन डेवलप हुआ वो कौन है हमारे पास, क्रस्टोज लाइकेन, जिसने एक क्रिस्ट की तरीके से एक फिल्म बना ली रॉक सरफेस के ऊपर, जहां पर वो फिल्म का काम था उस ऑर्गेनिक एसिड को धीरे 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 करके रिलीज करते रहना, एंड स्लोली एंड स्टेडली वो लेयर जो है हमारे पास फिनिश हो जाएगा। देन वो जो रॉक था जिसपे क्रस्टोज लाइकेन ग्रो कर रहा था उस पे क्रिविसेस बनने शुरू हो गए। जो क्रिविसेस बनने शुरू हुए मींस छेद और दरारें बनने शुरू हुई। स्विंग द वन, जो इसमें हमने बेसिकली क्या किया, फोलियोज लाइकेन के पास दो होते हैं, एक तो पूरी ऊपर बॉडी हो गई और नीचे की तरफ फंगल हाइफी होते हैं जिन्हें हम राइजाइंस का नाम देते हैं। राइजाइंस ने पेनिट्रेट कर दिया रॉक क्रिविसेस के अंदर, वहां जाके उसने ऑर्गेनिक एसिड को रिलीज किया जिसकी वजह से रॉक पे एक प्रेशर लगा और रॉक छोटे छोटे पीसेस में जाके टूट गया। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी तक समझ आया पॉइंट, राइट? सो ऑन दैट ग्राउंड वी विल डिफाइन, उस ग्राउंड पे हम डिफाइन करते हैं that lichen serve as right बाइनिया की तरह सर्व करता है, and the most important species to cause, or rather I can say initiate biological weathering. कंप्लीट है यहाँ तक? लाइकेन क्लियर है? आगे बढ़ जाओ इसके बाद। नाउ अब हमने कहा यहाँ पर कि लाइकेन के बाद अब जो नेक्स्ट कम्युनिटी आएगी, द नेक्स्ट कम्युनिटी विल बी, अब कौन सी आ जाएगी हमारे पास? मॉसेस, एंड मॉसेस इज द फर्स्ट ट्रांजिशनल कम्युनिटी। अच्छा मॉसेस किसके मेंबर हैं? देखते हैं कितना याद है आप लोगों को। मॉसेस किसके मेंबर हैं? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, राइट। मॉसेस के दो स्पेशल फीचर्स, टू स्पेशल फीचर्स ऑफ द मॉसेस, या वन ही बता दो चलो। वन स्पेसिफिक फीचर ऑफ मॉस। प्रोटोनिमा स्टेज फॉर्मेशन इन लाइफ साइकिल। ठीक है फाइन, वो तो लाइफ साइकिल वाला पॉइंट हो गया। मल्टी सेल्यूलर branched rhizoids and हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अगर याद हो तो स्फैगनम एक एग्जाम्पल पढ़ा था हमने इसका, याद है? राइट अब हमने कहा यहाँ पर मॉसेस क्या करते हैं, मॉसेस अपने मल्टीसेलर राइजोइड्स के थ्रू पेनिट्रेट द रॉक्स and
through water absorption increases the rate of biological weathering. फाइन, बायोलॉजिकल वेदरिंग के रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे. तो मॉसेस में हम क्या कहेंगे, दे विल पेनिट्रेट द रॉक्स. उन्होंने रॉक्स को पेनिट्रेट किया और फिर वाटर को एब्जॉर्ब भी किया. जब रॉक्स को पेनिट्रेट कर दिया, अपने राइजोइड्स के थ्रू क्रेविसेस में घुस गए, राइट, वहीं से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब भी किया, तो अंदर पानी का प्रेशर भी बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग का रेट हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. इंक्रीजेस द रेट ऑफ द बायोलॉजिकल वेदरिंग, राइट. दिस इज द केस वी विल से फॉर द मॉसेस, राइट, एज अ फर्स्ट ट्रांजिशनल कम्युनिटी व्हिच वी विल डिफाइन. एवरीवन गॉट दिस पॉइंट नाउ? समझ आया पॉइंट मॉसेस का? नाउ मॉसेस के बाद we will move to the annual grass stage. which we define as the second transition stage. अब मुझे यहाँ तक बताओ, क्या soil formation का rate बढ़ गया? Soil formation हो गई है, right? Now the rooted plants can penetrate the soil. Am I right? And begin the water and mineral absorption. वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन को भी क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया. समझ आया पॉइंट, राइट? अच्छा, हमने पहले, अब मैं ग्रासेस को ही ग्रो क्यों कराया, ग्रासेस को पहले मैंने ग्रो क्यों करा दिया ट्रीज की जगह? थोड़ा सोचो, क्या ग्रासेस मेरे पास हर्ब्स होंगी बेटा? एंड बीइंग अ हर्ब जनरली, क्या ग्रासेस के अंदर रिक्वायरमेंट पानी की उतनी नहीं होगी जितनी ट्रीज के पास होती है? तो क्या धीरे धीरे जो पानी का लेवल बढ़ रहा है वेदरिंग की वजह से, वो एक्चुअल में हमारे पास, राइट, पहले अलाउ करेगा कि शॉर्ट हाइट प्लांट्स ग्रो हों, फिर उसके बाद आगे जाके होंगे. Am I clear? And why for the 1 year? 1 year के लिए क्यों किया? क्योंकि एनुअल का मतलब तो यही है कि हम 1 year के लिए करना चाहते हैं, राइट? तो हमने कहा एनुअल के लिए हम इसी वजह से करेंगे, बिकॉज अगर एनुअल 1 साल की ग्रोथ हम देख सकते हैं, क्योंकि अभी इतना सॉइल तो नहीं बना है ना हमारे पास, राइट? तो इसीलिए तो हमने कहा यहाँ पर इंक्रीज द रेट ऑफ ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. कैसे करेंगे इंक्रीज रेट ह्यूमिफिकेशन मिनरलाइजेशन का? यस एवरीवन, क्या हो गया, रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा? And they can feed on the dead and decaying matter of other They species. themselves become the dead and decaying. ये feed नहीं कर सकते. They themselves become the dead and decaying organic matter, जिसकी वजह से decomposition का rate बढ़ेगा, और जब decomposition का rate बढ़ेगा तो obviously बात है, हमारे पास humification mineralization का rate भी क्या होगा, increase होगा. अभी समझ आया? जो स्पीशीज कंपटीशन में रिड्यूस हुई थी उन पर भी तो फीड कर सकते हैं. हाँ, उन पे भी feed करेंगे, वो तो हो ही रही है, राइट? अब एनुअल ग्रास स्टेज के बाद we'll move to the perennial grass stage. इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? पेरिनियल ग्रास स्टेज 1 साल के लिए या मल्टीपल इयर्स के लिए? मल्टीपल इयर्स. पेरिनियल ग्रास स्टेज मल्टीपल इयर्स रह पाएंगे ना, राइट? तो हमने कहा पेरिनियल ग्रास स्टेज कैन सस्टेन ओवर द लैंड एरिया, सस्टेन कर सकते हैं. पेरिनियल ग्रास स्टेज के बाद हम किस पे आ जाएंगे? श्रब्स, थोड़ी हाइट बढ़ाई,
और shrubs के बाद फाइनली कौन आ गया हमारे पास? ट्रीज। कंप्लीट है पॉइंट? यस गाइस, रैक सक्सेशन पूरा समझ आ गया अच्छे से? आगे बढ़ जाऊं? नोट हो गया बेटा? क्या हो गया, आज इतने शांत क्यों है सब? अच्छा, नीट का रिजल्ट पता चला आप लोगों को? यस मैम। नहीं देखा, इसमें 720 मार्क्स भी आए हैं बच्चे की, 100% रिजल्ट। नहीं, दैट्स वेरी बिग थिंग, कोई भी गलती नहीं। तो इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूँ, स्टिक टू द एनसीईआरटी, रीड द एनसीईआरटी नंबर ऑफ टाइम्स, कंसेप्ट पे ही रहो, इधर उधर मत घूमो। राइट, इधर उधर इतनी फालतू की बुक्स मत पढ़ो, बिल्कुल कंसेप्ट वाला पॉइंट्स ही पढ़ने हैं। जितना प्रिसाइजली पढ़ सकते हो बेटा उतना अच्छा है, उतने अच्छे से मार्क्स गेन करोगे, उतने अच्छे से स्कोर करोगे। राइट, सो ये सबसे मेन चीज़ है आपको जो करनी है बच्चे। राइट, और इसी को अगर मेंटेन कर लिया तो फिर तो आगे सब कुछ ठीक है। राइट, अभी हाल ऐसा हो चुका है कि जिस बच्चे के 700 मार्क्स हैं, राइट, दे आर ऑल्सो टेंस्ड, क्योंकि उस बच्चे को एम्स चाहिए था। राइट, अब जिस बच्चे को एम्स चाहिए था उसको उम्मीद अगर देखो एम्स की होगी, तो उसको अगर मौलाना आजाद भी ना मिले तो क्या ही होगा। राइट, और रैंक आपको मैं बताऊं 720 से लेके 700 के बीच तक में, राइट, इतने इतने ही दरमियान में 89 स्टूडेंट्स आते हैं, 89 स्टूडेंट्स। राइट, जिस बच्चे के, एक बच्चे का कॉल आया मैम 690 मार्क्स हैं। मैं कहा बेटा रैंक मार्क्स तो अच्छे, रैंक कितनी है? एंड आई वाज अमेज्ड टू हियर दैट रैंक। राइट, द रैंक इज बेटा 250। 690 मार्क्स पर रैंक 250 चली गई। कहाँ वो रैंक डबल डिजिट में आती थी बच्चे की? राइट, 690 वाले की। और एक टाइम था, दैट इज लास्ट टू लास्ट ईयर, 701 वाले का तो फर्स्ट रैंक थी। राइट, तो 690 वाले की आप लगा लो कहाँ पहुंचा होगा। राइट, इस बार इतना है 688 वाला, उससे डबल 500, 250, 200 बच्चा बीच में आ गया। राइट, तो इतना बेसिकली है कि हाँ, एक एक रैंक से, एक एक नंबर से डिटरमाइन हो रहा है इस बार तो। राइट, तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। राइट, और बहुत अच्छे से बेटा इसको कंप्लीट करना है ताकि ये क्लियर कर सको। क्लियर है यहाँ तक का पॉइंट? हाँ जी बच्चा, ज़ीरोफिटिक सक्सेशन क्लियर। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, चलो नेक्स्ट क्लास तक मेरा नया पेन आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो राइटिंग वाली आ रही है प्रॉब्लम आजकल क्लासेस में, कोई बात नहीं, बट ये ट्रिक वर्क कर गई, दैट्स गुड। नाउ हाइड्रैक सक्सेशन। हाइड्रैक सक्सेशन का मतलब हमें कहाँ करना है इसको? इन एक्वाटिक हैबिटेट। either you will go for the freshly formed pond, or right we can have the hydraulic succession in that also, कि freshly formed में भी कर सकते हैं, और still water, कहीं भी still water हो, you can go for it vitrification, but it's a very long process. now अब हमने कहा बच्चे हाइड्रैक सक्सेशन का मतलब क्या है? आपने वाटर के अंदर, एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर लाना है। मीन्स आप किसी भी तरीके से वाटर को वहां पर मूवेबल नहीं में रख सकते, स्टिल रखना है। तो यहाँ हमारे पास फाइटोप्लैंक्टॉन्स कम एज दी पाइनियर कम्युनिटी। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टॉन्स में कौन कौन से मेंबर आ जाते हैं? कैन आई से एल्गी, majority of the brown algae members, ग्रीन एल्गी, BGA, blue green algae, diatoms. राइट, अब ये क्या करेंगे हमारे पास, अभी से फाइटोप्लैंक्टन आज कराऊंगी। कैन आई से दी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी,
प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, ऑफ द सिस्टम, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके किसकी ग्रोथ को इनवाइट कर दिया, प्लैंक्टन्स, zooplankton's। अभी कैसे वर्क करते हैं दैट आई विल टेल यू इन द कमिंग सेशन, राइट। तो ये कंप्लीट करेंगे बेटा, हाफ एन आवर का चैप्टर और रह गया, कंप्लीट करके आपका फिर नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट विद द प्रोसेस, राइट। आई होप एवरीवन इज डन टिल हियर। हाँ जी गाइस, कंप्लीटेड है यहाँ तक टास्क अच्छे से? ठीक है, सक्सेशन क्लियर हुआ है थोड़ा बहुत? यस और नो? यस मैम। गुड। इकोसिस्टम आप पढ़ के आना है, राइट। थर्सडे वाली क्लास में कंप्लीट करके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का मेन पार्ट स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो रिवाइज टिल हियर, यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट करना है, राइट। एंड अलोंग विद दैट, एक कोर्स खत्म होते ही वी विल स्टार्ट विद द रिवीजन आल्सो, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीवियस चैप्टर्स गाइस, राइट। क्योंकि रिवीजन में लेट मी टेल यू वी आर गोइंग टू हैव सम क्विजेस, क्विज करेंगे हर क्लास में इन सम डिफरेंट पोर्टल, राइट। सो दैट विल बी ओपन टू यू, राइट। फर्स्ट वी विल कंप्लीट द सिलेबस, उसके बाद क्विज मैं आपके साथ स्टार्ट करूँगी, राइट। तो इसीलिए भी बहुत ध्यान से, राइट, अच्छे से प्रिपेयर करना है। फाइन, ओके गाइस, सो विल मीट यू इन द कमिंग सेशन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।